हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। सेना भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप लोगों ने जैसा कि न्यूज़ में पढ़ा होगा या किसी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना होगा कि अब आम नागरिक भी 3 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकते हैं और अपनी सेवा दे सकते हैं। तो ये पूरी अपडेट क्या है, इस अपडेट को हम जानेंगे अपने थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाड़ी की स्पीच से सुनेंगे कि आखिर उन्होंने इस भर्ती को लेकर क्या कहा। इससे पहले अमन आनंद ने, एक जो प्रवक्ता हैं आर्मी के, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की थी सबसे पहले। अब इसके बारे में मनोज मुकुंद नरवाणे ने पूरा स्पीच में अपने में क्या कहा है, तो उसको पूरा सुनेंगे हम। उसके बाद हम अपनी भाषा में उसको जानेंगे कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है, क्या आम नागरिक भर्ती हो सकते हैं आर्मी में, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या हमें ओनली रेस ही लगानी होगी या टेस्ट भी देना होगा, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को पूरा जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पूरा अपडेट जानेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से इस स्पीच को सुनिएगा, उसके बाद में मैं इसको डिटेल से चर्चा करूंगा कि आखिर ये पूरा प्रोसेस क्या है। The tour of duty concept is an idea which we are toying with at the moment. Whenever we have gone out and interacted with the youth in schools, colleges, our company commanders, our COs go to give various talks. Many times this feeling had come from the environment that a large number of them were curious to know what life in the army is all about, but not necessarily wanting it as a full-fledged career. So this was the germination of this idea. This was how this idea came to us, that can we give, therefore, an opportunity to our youth to experience what army life is about for a short period of time. And after that, they are free to pursue their chosen careers. And it is in this background that we are looking at, can we induct a few people, maybe 1,000 a year to start with, for a period of say 3 years, maybe a truncated training period of 6 to 9 months, and after that 2.5 years or so, 2 years or so, where he serves in the regular army. And if he's joining at around 18 years of age, so by 21, 22, he's free then to pursue whatever his chosen career will be, with the added advantage of having gained this experience of army life and ingrained certain other attributes of self-confidence, discipline, punctuality, to say the least. So some kind of these things which would imbibe, and thereby it would be a benefit to everybody, society at large also. And I'm sure that even in CV Street, people who are looking to recruit new people would rather take somebody who has served 2 years in the army than a fresher. Even for MBA, work experience is a prerequisite. If 2 years in the army, what can be a better example of work experience? So definitely these people would be snapped up as a result. After we have propagated this idea, we have had even better responses from the environment. And I would like to show you one more response that we had got. And when somebody had asked that if something like this happens, if this goes through, would you be interested in experience this initiative? And the response has been an overwhelming 92% saying yes. So I think this is definitely an idea which we can pursue. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने स्पीच को बड़े ध्यान से सुना होगा, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा चर्चा करेंगे डिटेल में कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, ठीक है। तो इस पूरे माजरे को देख लेते हैं। सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के बाद मिलेगी आकर्षक धनराशि। रक्षा मंत्रालय ने आम नागरिकों के लिए तैयार किया ड्राफ्ट, ठीक है। तो एक ड्राफ्ट तैयार किया रक्षा मंत्रालय ने, इसमें सेना के बारे में पूरा चर्चा की है कि आखिर ये 3 साल का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, इस पूरे प्रोसेस को समझाए, ठीक है। तो देखते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी, जिसको TOD बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में तैनाती जहां 3 साल की होगी, 3 साल की तैनाती होगी। वहीं इससे पहले
1 साल की ट्रेनिंग भी सेना कराएगी। ठीक है, सेना 1 साल की पहले ट्रेनिंग कराएगी, उसके बाद आपको 3 साल के लिए जॉइनिंग दी जाएगी। टीओडी में शामिल जवानों और अफसरों को ट्रेनिंग के साथ 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद समापक भुगतान किया जाएगा। ये समापक भुगतान पेंशन की तरह नहीं होगा, आपको एक ऐसी रियायत दे दी जाएगी जिससे वो अपनी आगे की उच्च शिक्षा को जारी रख सकें। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ऐसा भुगतान किया जाएगा जिससे आप अपनी आगे की उच्च शिक्षा कर सकते हो। जैसे कोई पीजी वगैरह करता है या कोई पीएचडी वगैरह करता है, वो उच्च शिक्षा को आप जारी कर सकते हैं। ठीक है, वहीं किसी आतंकी ऑपरेशन या युद्ध में, अगर कोई आतंकी ऑपरेशन या युद्ध में टीओडी जवान व अफसर शहीद होते हैं, बाई द वे ऐसा कुछ हो जाए, तो उनके आश्रित को, मतलब उनके जो घर वाले हैं, परिवारवासी हैं, वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो स्थायी तौर पर कमीशन शहीद सैन्य अधिकारियों व जवानों के आश्रितों को मिलती है। मतलब उनको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जैसे कि एक आम सैनिक बाय द वे युद्ध में शहीद होता है, तो ऐसे ही टीओडी का जवान अगर ड्यूटी करते समय, अपनी सेवा देते समय शहीद होता है, तो उसको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक आम सैनिक को मिला करती हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने टीओडी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसमें सेवा शर्तें शामिल की गई हैं। स्नातक पूरा कर चुके, इसमें क्या शर्तें हैं? शर्त यह है कि स्नातक पूरा कर चुके 22 से 23 साल की उम्र के युवक युवतियां टीओडी में शामिल होकर अफसर व जवान बन सकते हैं। मतलब गर्ल्स और बॉयज़ सारे अपना इसमें करियर बना सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद इसमें 12th के लिए भी अपडेट आएगी आगे कि जो 12th वाले हैं वो एक सैनिक बन सकते हैं, और जो स्नातक वाले हैं वो अपर लेवल पर अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी अपडेट इसमें अपनी स्वेच्छा से जो नागरिक हैं वो जा सकते हैं। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है कि आपको 3 साल के लिए टीओडी में ज्वाइन ही करना है, ऐसा कुछ दबाव इसमें है नहीं। ठीक है, तो 22 से 23 साल की उम्र के युवक या युवतियां टीओडी में शामिल होकर अफसर व जवान बन सकेंगे। ठीक है, अफसर भी बन सकते हैं, जवान भी बन सकते हैं। 3 साल की सेवा के बाद अधिकारियों को 5 से 6 लाख और सिपाही को 2 से 3 लाख रुपए, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि सेना के जवानों को 3 साल के बाद एक धनराशि दी जाएगी, तो वो धनराशि क्या होगी? 6 लाख अफसर को दे दिए जाएंगे और 2 या 3 लाख जो हैं वो जो सिपाही है उसको दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके 2 से 3 लाख रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है। सेना ने अपने टीओडी प्रस्ताव में यह भी कहा है कि दिल्ली विवि के एसआरसीसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक कर निकले नौजवानों को औसतन 30 से 50,000 रुपये प्रतिमाह का पैकेज मिलता है। जो दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, उसमें जो सैनिक नौजवान हैं वो उनको औसत 30 से 50,000 रुपये प्रतिमाह का पैकेज मिलता है, जबकि सेना में लेफ्टिनेंट व कैप्टन को हर महीने 80 से 90,000 रुपये का वेतन मिलता है। ऐसे में टीओडी में शामिल नौजवानों को यह वेतन टैक्स फ्री मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 3 साल में आपको जो वेतन मिलेगा उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, या बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगा। 3 साल की सेवा के बाद अधिकारी को 5 से 6 लाख और सिपाही को 2 से 3 लाख रुपए समापक भुगतान दिए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, ये समापक भुगतान था जो मैंने बताया था कि आपसे इससे अपनी उच्च शिक्षा आगे प्रारंभ कर सकते हो। ऐसा मनोज मुकुंद नरवाणे ने अपनी स्पीच में कहा है। तो 2 से 3 लाख रुपए सैनिक को दे दिए जाएंगे जिससे वो अपने आगे की उच्च शिक्षा को कर सकता है। इतना ही नहीं, टीओडी के बाद इन युवाओं को पीजी और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए शिक्षण संस्थानों में वरीयता देने का भी प्रस्ताव है। मतलब क्या है, समझ पा रहे हो? आप पीएचडी करते हो या कुछ भी करते हो तो एक तरह से जैसे एक्स सर्विसमैन होते हैं उसी तरह से आपको भी उसमें छूट दी जाएगी। ये मान लीजिए अगर किसी की लिस्ट जो है ओबीसी जनरल, जैसा आप जान पाते हो आरक्षण मिलता है, उसी तरह से आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ऐसी एडवाइजरी जारी कर सकती है जिससे टीओडी ऑफिसर्स को प्रवेश में वरीयता मिलेगी। ठीक है, जो टीओडी ऑफिसर उनको काफ़ी वरीयता मिलेगी, छूट दी जाएगी। 3 साल की सेवा के दौरान टीओडी अफसरों व जवानों की शहादत पर उनके आश्रित को फैमिली पेंशन, ईसीएचएस सुविधा, ग्रेच्युटी व पूर्व सैनिकों के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, जो पूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, ये एक काफ़ी अच्छी अपडेट होगी। आप लोगों को सुन के काफ़ी खुशी हो रही होगी इस चीज़ को कि अब सेना ने एक सर्वे भी किया है जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर से 22 से 23 साल की उम्र में स्नातक के बाद 3 साल की टीओडी के बाद 26 से 27 साल में आने वाले युवाओं को करियर संवारने में प्राथमिकता देने की इच्छा जताई है।
जो 26 से 27 साल हो जाती है तो युवाओं को करियर संवारने में प्राथमिकता देने की इच्छा जताई है। जबकि अभी एसएससी में 10 साल की सेवा के बाद 33 से 34 साल की उम्र में युवा कॉरपोरेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, जबकि देखो एसएससी में क्या है कि 33 से 34 साल बाद, और जबकि क्या होगा जो टीओडी वाले होंगे उनको 26 से 27 साल में आने वाले युवाओं को भी करियर संवारने में प्राथमिकता देने की इच्छा जता दी गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। आई होप फ्रेंड्स पूरा अपडेट समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि इसमें आपको रेस भी लगानी होगी, टेस्ट भी देना होगा। तो ऐसा ना समझें कि हमको अब नहीं पढ़ना, आर्मी के लिए कुछ नहीं करना, अब तो हम बस हो सकता है रेस ही लगानी पड़े तो हम आज से ही अपनी फिजिकल की तैयारी कर लेते, पढ़ना वढ़ना सब कुछ छोड़ दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। बस इसके लिए ये है कि जो काफ़ी लोग ऐसा हैं कि आर्मी में ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन उसको अपना लाइफ टाइम नहीं बनाना चाहते, वो ओनली कुछ समय तक ही सेवा देना चाहते हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छी अपडेट है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना भी है, रेस भी लगानी है, सारा कुछ वही प्रोसेस होगा। लेकिन इसमें आप 3 साल के बाद लीव ले सकते हो, मतलब आपको 3 साल के बाद वहाँ से छुट्टी दे दी जाएगी। तो आप उसके बाद अपना कोई अदर कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी वरीयता दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और यहाँ तक कि आपको एक अच्छी अपडेट मैं बताऊँ, एक अच्छी अपडेट ये है कि जो आप जानते हो महिंद्रा ग्रुप, ठीक है, महिंद्रा की कार वगैरह आती हैं, तो महिंद्रा ने कहा है जो टीओडी वाले जवान जो वहाँ से जब उनको रिटायरमेंट मिलेगी तो उसके बाद महिंद्रा उनको जॉब देगा। जो जितने भी टीओडी के जवान हैं तो महिंद्रा अपनी ओर से उनको जॉब देगा। आप इच्छुक हों तो उस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके आप मुझे से पूछ सकते हो। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इस पूरी अपडेट को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।